ویلکم بیک ناظرین، آج کی ٹاپ سٹوریز پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مونسون کا پہلا سپیل بارشوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تباہی مچا دی ہے۔ مختلف حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایڈوائزری جاری کی گئی تھی۔ خیر کن کن علاقوں میں زیادہ تباہی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو پروگرام میں آگے چل کر بتائیں گے، لیکن ہم کیسے بھول سکتے ہیں سانحہ کہنا جاں بحق 14 بچوں کی نماز جنازہ کے بعد انہیں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ المناک واقعے کا ذمہ دار کون ہے اس بات کا اب تک تعین نہیں ہو سکا ہے۔ واقعے کا مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے مگر ایف آئی آر میں اقدام قتل کی کوئی دفعہ ہی شامل نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں گے یہ معاملہ کیا ہے آگے پروگرام میں چل کر۔ ہے اور پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ فریقین نے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ساتھ ہی قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اس بارے میں بھی آگے چل کر بات کریں گے۔ اور سعودی کرکٹ فیڈریشن اور پی سی بی کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ طے پا گیا جناب، جس کے تحت جدہ میں عالمی معیار کا کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے کرکٹ سفر میں حصہ ڈالنا بہت اعزاز کی بات ہے۔ اس بارے میں بھی آگے چل کے بات کریں گے۔ اور آخر میں فیفا ورلڈ کپ کے سنسنی خیز ناک آؤٹ مقابلے جاری ہیں۔ کس ٹیم کی ہوئی جیت اور کس ٹیم کی ہار ہوئی وہ بھی آپ کو تفصیلات بتائیں گے کچھ ہی دیر بعد۔ تو یہ تمام تر ہماری ٹاپ سٹوریز تھیں۔ تو ہم اپنی پہلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مونسون کا پہلا تباہ کن سپیل ہے۔ بارشوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کئی علاقوں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ مختلف حادثات میں خواتین اور بچوں سمیت 11 افراد جان سے گئے، جبکہ خیبر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ دیر بالا میں مدرسے کی 20 سے زائد طالبات زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ Whenever we say کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کے تناظر میں سب سے زیادہ vulnerable ہے تو ہے، اب دیکھیں نا اس کے نقصانات۔ ظاہر ہے اب پاکستان تو اس حوالے سے جیو اسٹریٹجیکلی بھی دیکھا جائے تو اتنا تیار تو نہیں ہے۔ لوور چترال کی اگر ہم بات کریں، کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلابی صورتحال ہمیں وہاں بھی دیکھنے کو ملی ہے، اور پانی کا ایک منہ زور ریلا جس نے 27 گھروں کو متاثر کیا ہے۔ دکانوں اور جو پل ہے انہیں بھی نقصان پہنچا ہے۔ درجنوں مویشی بہہ گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مویشی ان کا ذریعہ معاش ہے، مطلب یہ ان سے کماتے ہیں، سارا ان کا جو دار و مدار ہے ان پر ہے، تو کتنے زیادہ پرابلمز ہیں جو کریٹ ہوتے ہیں۔ اٹک میں بھی دیواریں اور چھتیں گرنے سے خاتون سمیت 3 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ اگین کہ ٹھیک ہے، مطلب یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں قدرتی آفات کے تناظر میں یہ سارے لاسز تو ہوتے ہی ہیں، لیکن پھر ڈیمیج جو انفراسٹرکچر ہوتے ہیں، جو بوسیدہ عمارتیں ہوتی ہیں، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ ہری پور کی بات کریں تو بچہ پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ شانگلہ میں 2 خواتین ریلے میں بہہ گئی ہیں۔ اس طرح کے جو واقعات سامنے آتے ہیں نا، اب ایک دل دہلا دیتے ہیں، کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ ہی ہے، کوئی بھی ظاہر سی بات ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو بھی احتیاطی تدابیر اپنانا بہت ضروری ہے۔ اور جو خواتین بہی ہیں وہاں پر، ان میں سے ایک کو بچایا گیا تھا اسی وقت، لیکن دوسری کی لاش ملی ہے۔ سوات کی سیف اللہ جھیل کی بات کریں، وہاں بھی کشتی الٹنے کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں 2 خواتین اور 2 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جن کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ بلوچستان کی بات کریں تو وہاں بھی دھواں دھار بارشیں ہوئی، اور جہاں جوب میں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں خاتون اور 2 بچوں کی جان چلی گئی، 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ چاہے سیلابی ریلا ہو، چاہے عمارتیں ہوں، یہ بہت متاثر ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ سفر ہوتا ہے، سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں لوگ وہاں پر۔ تو جو ہیومینیٹیرین کرائسس جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ وہاں کے جو نیٹو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو جی جناب آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی وقفے سے بارش ہوئی ہے، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ لاہور میں بھی موسلادھار بارش سے گرمی اور حبس کا زور تو ٹوٹ ہی گیا ہے، لیکن لیسکو ریجن کے 460 فیڈر سٹرپ ہو گئے، اور محکمہ موسمیات 6 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اور شیری اگر ہم بات کریں نا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں بارش رحمت تو ہے، لیکن اکثر اوقات ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے، تو ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ یہ زحمت نہ ہی بنے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور آپ نے جیسا کہ کہا نا کہ حبس کا زور ٹوٹ گیا، لیکن جو لیسکو کے فیڈر سٹرپ ہوئے ہیں اس نے اس زور کو دوبارہ بحال کر دیا، جب پوری رات ہمارے بھی گھروں میں لائٹ نہیں تھی تو وی سفر دیٹ۔ لیکن خیر کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اب گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کی بات کریں تو ظاہر ہے گلیشیائی جھیلیں پھٹنے اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ
खदशा वहाँ भी ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पर जो मुकीम अफराद हैं वो इंतज़ामिया की बात सुने। अगर वो कहते हैं कि उन इलाकों से मूव होना है तो ज़रूर हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जानें कीमती हैं। अब सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ तबाही हुई है। मुल्क भर में मौसम से मुतालिक क्या अपडेट्स हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदों से। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेशावर से अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा, सुबह खैबर पख्तूनख्वा यहाँ की बात कर लेते हैं तो कहाँ कितनी बारिश हुई है, कितना जानी और माली नुकसान अभी तक एज ऑफ नाउ रिपोर्ट हुआ है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है मगरबी हवाओं का दबाव जो है खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और मैदानी इलाकों में दाखिल हो चुका है, जबकि इसके अलावा बंगाल और बहिरा अरब के दो मकतूब हवाओं का जो वो है सिलसिला आज दाखिल होगा, तो इससे मजीद शिद्दत आएगी इन बारिशों में, क्लाउड बर्स्ट में, आसमानी बिजली गिरने में। अब तक आसमानी बिजली गिरने, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड से 6 अफराद जाबाहक हो चुके हैं, जिनमें 3 बच्चे 2 खवातीन शामिल हैं। इसी तरह 19 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि लोअर चित्राल में सबसे ज्यादा जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं उसकी वजह से 27 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें 2 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा 2 मसाजिद, 2 दुकानें और एक पुल भी बह गया है, जबकि 4 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें इस सैलाब रैली के नजर हुई और कई दर्जनों मवेशी भी इसमें बह गए, लेकिन उताहाल उसकी तफसीलात जमा की जा रही हैं। इसी तरह अगर देखें पेशावर के करीब जिला खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जो है वो जाबाहक हो चुके हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान, ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कोई पेशगी इकदाम किए गए और अब हुकूमती सतह पर मुतासरीन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इसके हवाले से क्या अपडेट्स है हमारे पास? जो मॉनसून प्लान था वो तो पहले से तैयार कर लिया गया था, और जो सीरिया में जो है जो हसास अजला है बालाई इलाकों के, वहाँ पहले से जो मुतल्लिका सामान है, आलात हैं, इमदादी अशिया हैं, वो भिजवाई जा चुकी हैं, जबकि फंड्स भी मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को भिजवा चुके हैं। साथ ही साथ वज़ीर आला ने इन वाक़यात पर अफसोस का इज़हार किया है और तमाम मुतल्लिका अफराद को फौरी तौर पर मुतासरीन तक रिलीफ पहुँचाने की हिदायत की गई है। जी सही है अब्दुर्रहमान, साथ ही मौजूद रहेगा। अटक की बात कर लेते हैं, फारूक बुखारी हमारे साथ हैं। फारूक, अटक में क्या सूरत हाल है, ये भी बता दीजिए। जी, अटक में गुज़श्ता कई रोज से शदीद गर्मी पड़ रही थी। गुज़श्ता रोज अटक में होने वाली तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश के पानी से शहर सैलाब का मंजर पेश करने लगा, सड़कें गलियां जेरे आब आ गई। तूफानी बारिश से बूटा गांव के करीब पत्थरों से बनी दीवार गिर गई, जिसमें दबकर 2 सगे भाई जाँ बाक हो गए। शीबाग खुर्द में कच्चे मकान की छत गिर गई, जिसमें खातून जाँ बाक हो गई। दोनों हादसात में 5 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में खड़ी फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। इतला है महकमा मौसमियात ने आज और कल फिर अटक में बारिश की पेशन गोई की है। अटक और मुख्तलिफ इलाकों में ज़ेरे तामीर तरक्याती कामों को भी तूफानी बारिश से बहुत नुकसान हुआ है। डिप्टी कमिश्नर अटक रो आतिफ रजा ने शहरियों से अपील की है कि वो बारिशों के दौरान मोहतात रहे, दरियाओं नदी नालों सही, तो बार बार यही अपील की जा रही है कि बारिशों के दौरान खास तौर पर मोहतात रहें। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम लाहौर का रुख करते हैं। उमर याकूब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर, आप बताइएगा कि रात को काफ़ी बारिश हुई है, खुदा न खास्ता लाहौर में तो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी या फिर माली, और साथ ही इस वक्त शहर का मौसम कैसा है, मजीद भी क्या पेशगोई की गई है? अच्छा, बिल्कुल गुज़िश्ता रात बारिश हुई थी, बल्कि जम के बारिश हुई थी और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी भी जमा हो गया था और लेस्को के फीडर्स भी ट्रिप हो गए थे। लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। लेस्को काम की तरफ से दावा किया जा रहा था, अभी दावा किया जा रहा है कि जितने भी फीडर्स ट्रिप हुए थे उन्हें बहाल कर दिया गया। बिजली तमाम इलाकों में आ चुकी है और जिन इलाकों में पानी जमा हुआ था, नशेबी इलाकों में, वहाँ भी जो ज़िले इंतज़ामिया और वासा की टीम्स थी उन्होंने पानी को क्लियर कर दिया गया है। इस वक्त तक लाहौर के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर पानी जमा हो और जिससे लोग मुतासर हो रहे हों। मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो लाहौर का दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जा रहा था और 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो 30 से नीचे आया हुआ है, यानी बहुत खुशगवार मौसम है।
हब्स का जोर टूट चुका है, गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त इस वक्त लाहौर का मौसम है और महकमा मौसमियात की तरफ से अभी पेशगोई की जा रही है कि मज़ीद 3 से 4 रोज़ तक वक्फे से बारिश होगी, जो लाहौर के मौसम को मज़ीद खुशगवार बनाएगी और गर्मी का जोर जो है वो मज़ीद टूट जाएगा। जो इस वक्त हवा की रफ्तार है वो 17 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जो इस मौसम को मज़ीद खूबसूरत बना रही है। और अगर कुछ देर बाद बारिश का भी बताया जा रहा है कि दोबारा बारिश का इम्कान है, तो दोबारा बारिश होती है तो लाहौर में बाकायदा तौर पर आपको जो नॉर्दर्न साइड्स की जो मौसम है उसकी फीलिंग्स आएंगी कि आपको लाहौर के अंदर ही उमर आप भी काफ़ी ज़्यादा ना खिले खिले नज़र आ रहे हैं। उमूमी तौर पर आप भी बड़ी तपती धूप से हमें लाइव दे रहे होते हैं, तो आज वो नज़र आ रहा है कि मौसम बाहर बहुत अच्छा है। साथ ही मौजूद रहेगा इस्लामाबाद में भी बारिशें हो रही हैं। जनाब उमर बिन आसिफ से मज़ीद बात कर लेते हैं। उमर, महकमे मौसमियात का क्या बताना है और मुल्क भर में मानसून के इस स्पेल के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की थी कि 1 से लेकर 6 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर मानसून की बारिशें बरसेंगी। गुज़िश्ता रोज जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर शाम के वक्त तेज हवाओं के साथ जो है मूसलाधार बारिश देखने को मिली। साथ साथ जो जुड़वा शहर है रावलपिंडी, वहाँ पे भी मूसलाधार बारिशों के बायस इस्लामाबाद में दस जो गाड़ियों पर गिरे। अलबत्ता उससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गाड़ियाँ जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पे इससे मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग जारी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस सिलसिले में एक अलर्ट जारी किया था। अलर्ट के मुताबिक जो है वो सैलाब है वो शहरों में रुख कर सकते हैं, जिन्हें आप अर्बन फ्लडिंग कहते हैं। इसलिए शहरियों को कहा गया कि जो नशेबी इलाके उधर से दूर है, जैसे जैसे जिला इंतजामिया के इस पर तमाम तर चीजों को पर अमल करें। इसके अलावा ग्लॉस मतलब ग्लेशियाई झीलें फटने का भी खदशा जो है वो तेज और ज्यादा होता जा रहा है, जिसके बायस गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में जो है ग्लॉस के बायस सैलाब जो पैदा होगा उसके मलबे में जो है वो लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। उसके साथ साथ जो मिट्टी के पौधे भी जो है वो आगे गिर सकते हैं, जो मुकामी आबादियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और जानी और माली नुकसान हो सकता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जितनी भी जिले इंतजामिया उन्हें नोटिफिकेशन जारी किया, उन्हें हिदायत की है कि तमाम तर तैयारियों को जो है वो हर सूरत मुकम्मल रखें ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल पर फिलफौर जो है काबू पाया जा सके। अच्छा उमर, ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि आगे 6 जुलाई तक मुल्क के कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश होगी? देखिए महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है 1 से लेकर 6 जुलाई तक जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाके जिसमें सेंट्रल पंजाब आता है, खासकर लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट की जो बेल्ट है वहाँ पे बारिश होगी। रावलपिंडी में बारिश हो सकती है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई इलाके और मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भी मूसलाधार से लेकर मूसलाधार बारिश तक देखने को मिल सकती है। अलबत्ता जो सिंध के ज्यादातर इलाके हैं वहाँ पे 3 से 4 जुलाई के दौरान बारिश हो सकती है, लेकिन आज जो है वहाँ पे जो मौसम है वो गर्म रहेगा। और अगर हम बलूचिस्तान की बात करें वहां पे भी चंद ऐसे मुकामात है जहाँ पे बारिशें देखने को मिल सकती हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में जो है महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की है कि पानी वाली जो जगहें उनसे दूर रहें, नशेबी इलाकों से दूर है, ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान से बच सके। बिल्कुल ऐसा ही, किसी भी जानी और माली नुकसान से बच सकें, एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। और नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेटेड रखे हुए। वेलकम बैक नाजरीन। खबर वही अंदाज ने हमें एक बार फिर से खुशामदीद। तो हम बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान के मामले पर। बड़ी पेशरफ्त हुई है जहां पर इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त को लेकर दोनों मुल्कों ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कतर और पाकिस्तान की सालिसी में आज दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकराती वफूद के साथ अलहदा मुलाकातें भी हुई। अच्छी बात है, इसीलिए हमने भी एक्साइटेडली इसका स्टार्ट किया, जिनमें इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त से मुतालिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है। और कतरी वज़ारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की नमाज जनाजा तदफीन के बाद अगला इजलास जल्द मुनक्किद किया जाएगा। अब ये इजलास जब होगा इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे, जैसे कि रोजाना हम आप लोगों को मुसलसल इससे मुतालिक अपडेटेड रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या कहा जा रहा है वो भी क्विकली आपको बताते हैं। ईरान के मामले में अमरीका अच्छी पेशरफ्त कर रहा है, मुल्क में मौशी अशारिये बेहतर है और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। अब हुर्मज़ से तेल की तरसील जारी है। बातचीत का जो बुनियादी मकसद है तेहरान को जौहरी सलाहियत के हुसूल से रोकना है। अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भरपूर मौका देगा।
आइंदा की पेशरफ्त ईरान के इक़दामात पर ही मुनहसर होगी। अमरीकी सदर ने दो टोक कहा है कि चीन को पैनामा कैनाल पर कंट्रोल हासिल नहीं करने देंगे। Whenever he talks ना तो बड़ा वो मिक्स बातें कर रहे थे, उन्होंने चीन के हवाले से भी एक तरह से वार्निंग भी होती है, एक तरह से मुफाहमत की बातें भी होती हैं। तो दूसरी जानिब दिफाई सलाहियतों पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान के कायम मुकाम वज़ीर दिफा मजीद इब्न अल रज़ा ने ये साफ साफ बता दिया है। उन्होंने कहा कि दिफाई मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें कौमी सलामती की रेड लाइन है, जबकि ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों की तरक्की जारी रखेगा। तो एक बहुत ही अहम बयान सामने है। जैसा कि हम पहले भी कहते हैं कि दोनों जानिब से बहुत ही बैक एंड फोर्थ बयानात का सिलसिला जारी है। वहाँ से वार्निंग है, यहाँ से उसकी तरदीद कर दी जाती है, या ईरान की तरफ से वार्निंग दी जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उसकी तरदीद कर दी जाती है, या फिर कभी कभार जेडी वेंस की जानिब से भी तरदीद कर दी जाती है। तो ये बयानात का सिलसिला बैक एंड फोर्थ जारी है। नैरेटिव की जंग तो है ना, ईरान ने अपना मौक़िफ़ सामने रखना ही है ना। और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का मामला हो या कोई और मामला हो, बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया गया है ईरान की जानिब से कि हम इन चीज़ों पर, जिसमें दिफाई मुआहदा हो या फिर आपके पास जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हो, हम उन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फिर अगर अमेरिका कुछ बात कर रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसके काउंटर में ये एक चीज़ें हैं जो कि सामने आ रही होती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब भी हम देखते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट होती है, कोई भी पेशरफ्त होती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके पास जो है वो ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के जो असरात हैं, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। यानी कि आप देखें कि 4 मंथ्स के बाद जो कीमतें हैं वो सबसे लीस्ट है। क्विकली आप लोगों को ज़रा स्टैट्स शामिल कर लेते हैं। बरतानवी खाम तेल की बात करें, $70.95 फी बैरल पर आ चुका है। अमरीकी खाम तेल की कीमत की बात करें, 1% से ज़्यादा कम होकर अब $67.86 फी बैरल पर ट्रेड कर रही है। और सोबिया, जब भी हम देखते हैं आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होती हैं, उम्मीदें जाग जाती हैं और इंतजार रहता है जुम्मा हफ्ते का, क्योंकि यूजुअली कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं। बट लेट्स नॉट हैव अ वेरी हाई होप्स, क्योंकि ज़ाहिर है हमें ये बात भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि हर मुल्क का एक अपने डायनामिक्स होते हैं। हम कहीं ना कहीं IMF के अंडर भी हैं, तो हम उतना रिलैक्सेशन नहीं ऐसा ही है। लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जनाब, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात हुई है और उसमें मुख्तलिफ उमूर समेत दो तरफा ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया है, जबकि सिक्योरिटी मामलात में दो तरफा ताउन को बढ़ाने के हवाले से अहम याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए हैं। इसके अलावा दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने विफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। दुमाओं के दरमियान मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात समेत बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। और इसके अलावा वज़ारत दाखिला की सतह पर दो तरफा ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया। और साथ ही इस मौका पर सिक्योरिटी के हवाले से दोनों वज़राए दाखिला ने अहम याददाश्त पर दस्तखत भी किए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सिक्योरिटी के मामलात पर इस तरह के दस्तखत किए जा रहे हैं। दुरुस्त बात है सोबिया। और फिर देखें, बायलैटरल रिलेशंस के तनाज़ुर में इस तरह की मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। तो वेलकम बैक नाजरीन। फीफा वर्ल्ड कप में बोस्निया का सफर तमाम हो चुका है। अमेरिका ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि बोस्निया को बाआसानी 2-0 से शिकस्त भी दी। अमेरिका ने 24 साल बाद नॉकआउट मैच में कामयाबी हासिल की है। और जो बेल्जियम ने भी सेनेगाल को ट्रॉफी की दौड़ से बाहर कर दिया। मुकर्ररा वक्त तक दोनों टीमों का मुकाबला 2-2 गोल से पहले बराबर था। एक्स्ट्रा टाइम में बेल्जियम ने फैसलाकुन गोल दागकर मैच 3-2 से अपने नाम कर लिया। तो जनाब, इंग्लैंड भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल पहुंच गया है। राउंड ऑफ 32 में इंग्लिश टीम ने कांगो को 2-1 से शिकस्त दी है, जबकि दूसरे हाफ में हैरी केन ने 2 गोल करके खसारे को फैसलाकुन बढ़तरी में बदल दिया। जबकि वर्ल्ड कप में इंग्लिश कप्तान के गोल्स की तादाद 5 भी हो गई है। इसके अलावा इंग्लिश कैप्टन हैरी केन ने ब्राजील के अजीम फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और इंग्लैंड के स्टार फुटबॉलर ने वर्ल्ड कप की तारीख में मजमूई तौर पर 13 गोल करके पेले को पीछे छोड़ा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राजीलियन लेजेंड के गोल्स की तादाद 12 थी। अच्छा जी, तो फुटबॉल की बात तो हो गई। क्रिकेट से मुतालिक अपडेट देते हैं। अहम तरीन वो ये है कि जहां सऊदी क्रिकेट फेडरेशन और PCB के दरमियान मुआहदा तय पा चुका है। MOU के तहत जद्दा में आलमी मयार का क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, पिचेस और जदीद मीडिया सहूलियात की फराहमी के बाद सऊदी अरब में आलमी क्रिकेट मैचेस और टूर्नामेंट्स की मेज़बानी अब जनाब मुमकिन हो सकेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि सऊदी अरब के क्रिकेट सफ़र में हिस्सा डालना एक एजाज़ की बात है। और आप देख सकते हैं कुछ हाईलाइट्स जो हम भी आप लोगों को दिखा रहे हैं विजुअल्स की, कितनी खुशगवार माहौल में ये मुलाकात रही है।
वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉनसून का पहला तबाहकुन स्पेल जारी है। बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई इलाकों का नक्शा ही बदल दिया है। मुख्तलिफ हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जान से गए, जबकि खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। देर बला में मदरसे के 20 से ज़ायद तालिबात जख्मी, जबकि लोअर चित्राल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल है। पानी के मुंह जो रेलों ने 27 घरों को मुतासिर किया है, जबकि दुकानों और पुल को भी नुकसान पहुंचाया है। दर्जनों मवेशी बह गए हैं। अटक में भी दीवारें और छतें गिरने से खातून समेत 3 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि हरिपुर में बच्चा पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। बिल्कुल, आप देखें ना कि कहीं कोई सैलाबी रेले में बह रहा है, कोई जो बोसीदा इमारतें हैं उसके नीचे आ रहा है, मतलब क्या कुछ हो रहा है। शांगला में 2 खवातीन वेले में बह गई हैं, एक को बचा लिया गया, दूसरी की लाश मिल गई है। सवात की सैफुल्ला झील की बात करें, जहां कश्ती उलटने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनका ताल्लुक एक ही ख़ानदान से, सोचें एक ही ख़ानदान से बताया जा रहा है इनका ताल्लुक। बलूचिस्तान की बात कर लें तो वहाँ भी ज़ाहिर है धुआंधार बारिशें हुई, जहाँ जोब में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में खातून और 2 बच्चों की जान चली गई और 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और आज भी मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशी पेशगोई की गई है। अलबत्ता सिंध बिलखुसूस कराची की बात करें तो 3 जुलाई के बाद मानसून का स्पेल वहाँ पर मुतवक्के है, यानी कि 3 जुलाई तक का एक क्वेश्चन है कराची के पास कि वो जो एक हमेशा हम देखते हैं ना कि स्पेल के बाद फिर जो शहर की हालत होती है उससे पहले कुछ प्रिकॉशनरी मेयर्स ले लिए जाएँ। शहरियों को भी ज़रूरी है वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं। अब खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमने देखा कि तूफ़ानी बारिशों से जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मुतासर होते हैं, जहां तूफ़ानी बारिशें इटसेल्फ इम्तहान बन जाती है, वहां एक बहुत अहम तरीन मामला ये है जनाब कि खसरा की वबा भी एक बार फिर बच्चों की सेहत के लिए संगीन ख़तरा बनती जा रही है। पेशावर हो, बन्नू, शुमाली वज़ीरिस्तान, लकी मरवत और करक की बात करें, जहाँ खसरा के जो केसेस हैं वहाँ नुमाया हद तक हम देख रहे हैं कि एक जो टॉल है उसमें इजाफा हो रहा होता है, नंबर्स में इजाफा हो रहा होता है और अस्पतालों में जो रश है वो बढ़ रहा होता है। तो इसी पर रिपोर्ट तैयार की है इरफान मूसाज़ई ने, वो देखते हैं। पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में खसरा के मरीज बच्चों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बनू के अस्पतालों में सूरत हाल ये है कि एक बेड पर कई बच्चे ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक खसरा एक मुतअद्दी बीमारी है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आसानी से मुंतकिल हो जाती है। बाज़ को जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो ब्रेन में चले जाते हैं, जिसको इनकेफेलाइटिस कहते हैं, तो वो फिर बहुत मुश्किल से बचते हैं, उसको फिट्स आ जाते हैं। और जो आखिरी कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत ख़तरनाक है उसे हम SSP कहते हैं, जो मीज़ल हो जाता है उस बच्चे को 3-4 साल या 5 साल बाद वो ये हो जाता है और वो बच्चा माजूर हो जाता है। अस्पतालों में सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर दूसरी तरफ माहिरीन सेहत का कहना है कि वालिदैन अगर बच्चों को हिफाजती टीके बर वक्त लगवाएं तो इस बीमारी और इसकी पेचीदगियों से बड़ी हद तक बचाव मुमकिन है। कैमरामैन आबिद खान के साथ इरफान मूसाज़ई, समा, पेशावर। तो नाजरीन, ये रिपोर्ट तो आपने मुलाहिजा की है। अब सिंध का रुख करते हैं। वहाँ भी खसरा की वबा बेकाबू होती जा रही है। 6 माह में 53 बच्चे इंतकाल कर गए हैं। बहुत ही अफसोस की ये बात है। 2000 से ज़्यादा बच्चे खसरा से मुतासर हैं, जबकि बढ़ते केसेस पर माहिरीन सेहत भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। हामिदुर रहमान ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। में खसरा बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। महकमा सेहत सिंध के आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 53 बच्चे जाँ बहक और 2000 से ज्यादा मुतासिर हुए। कराची समेत सूबे भर में बच्चों की वैक्सीनेशन न होने की वजह से केसेस बढ़ने लगे। बदकिस्मती से वैक्सीन की जो शरह है वो मुल्क में 70% है। 30% वालिदैन बच्चों को अभी भी वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। सिंध में रिपोर्टिंग का सिस्टम थोड़ा सा बेहतर है, तो आमतौर पे जो मुल्क के दीगर इलाकों की निस्बत रिपोर्टिंग सर्विलेंस जिसको कहते हैं बेहतर होती है। इसी वजह से सिंध के अंदर जो शरह अमवात इसकी है मीज़ल से, वो 53 बच्चों का इंतकाल हुआ है, जो अभी तक आदाद शुमार है। पूरे मुल्क में ये तादाद 96 हो जाती है। सूबाई वजीर सेहत अजरा पीचू ने वालिदैन से बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने की अपील की है। औरतें जो हैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं बहुत सारे जगहों पे, और बहुत सारी जो है लोग हैं जिनमें औरतों को निकलना ज़रा मुश्किल होता है बाहर। तो हम इसलिए 24 घंटे हमने खोला है कि शाम को जब मर्द हजरात
घर वापस लौटते हैं काम करके तो वो अपने बच्चों को ला सकते हैं और फिर टीके लगवा सकते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि खसरा सिर्फ सिंध का नहीं पूरे पाकिस्तान का मसला है, जो काबिले इलाज मर्ज होने के बावजूद मुल्क भर में तेजी से फैल रहा है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ हामिद और रहमान, समा, कराची। और अब बात करते हैं सानेहा काहना की, जिसने पूरे मुल्क की फिजा सोगवार कर दी है। आज क्या, अगर आज से 10 साल बाद भी हम इस सानेहा का जिक्र करेंगे ना, तब भी आंखें यूं ही नम होंगी। इतना ही मुश्किल होगा इस वाक़े के बारे में बात करना। जिगर गोशे सबको रोता छोड़ गए। सानेहा काहना में जाम बहक 14 फूल मिट्टी तले जा सोए। अलमनाक वाक़े का असल जिम्मेदार कौन, अब तक इस बात का तयन ही नहीं हो सका है। इंतजामिया ने क्या किया जी, सारा मलबा इमारत के मालिकान और मिस्त्री पर डाल दिया। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन इक़दाम कत्ल की कोई दफा ही शामिल नहीं की गई है। दिल में कब्र सी बन जाती है जब मापाना से फूलों के जनाजे उठे, बड़े भारी जनाजे उठे। 14 मासूम बच्चे मनो मट्टी तले जा सोए। सानेहा काहना का जिम्मेदार कौन, अब तक तयन ना हो सका। FIR में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल, न ही किसी सरकारी एहलकार या इदारे को गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया। मुकदमे में सिर्फ खातून टीचर को नामजद किया गया, जिस इन्फोर्समेंट टीम पर सवालात उठ रहे हैं, मुकदमा भी उसी की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। सवाल ये है, क्या मुकदमा जल्दबाजी में दर्ज किया गया? क्या कमजोर तफ्तीश मुतासरा खानदानों को इंसाफ दे पाएगी? ट्यूशन सेंटर में 40 से 50 बच्चे पढ़ते थे, क्या NOC लिया गया था? ट्यूशन सेंटर चलाने वालों को इजाजत किसने दी? बिल्डिंग महफूज थी या सिर्फ कागजों में महफूज लिखी गई? इमारत का हिफाजती मुआयना कब हुआ? तामीराती काम की इजाजत किससे ली गई? इमारत में तामीरात जारी थी, किसी इदारे ने इंस्पेक्शन क्यों नहीं की? जिला इंतजामिया की संगीन गफलत पर कोई पूछगछ क्यों ना हुई? आखिर इस इमारत को खतरनाक करार क्यों नहीं दिया गया? क्या रेस्क्यू और इमरजेंसी रिस्पांस का निजाम बर वक्त और मौसर था? क्या इस इलाके में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कभी मौसर कार्रवाई हुई? क्या किसी इदारे के पास ऐसे ट्यूशन सेंटर्स का मुकम्मल डेटा मौजूद है? शहर में कितने ट्यूशन सेंटर रिहायशी या गैर मंजूर शुदा इमारतों में चल रहे हैं? क्या अफसरान की गफलत का भी एहतसाब होगा या सिर्फ मातहत अमला कुर्बानी का बकरा बनेगा? CCPO और कमिश्नर लाहौर के मुताबिक हर पहलू से तहकीकात जारी हैं। मुजरिमाना गफलत या जुर्म साबित हुआ तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत ने जाबहक बच्चों के वर्सा के लिए 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, मगर मुतासरा खानदान जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा कर रहे हैं। तो नाजरीन, ये आपने मुलाहिजा किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ख़बर दें कैदियों के फरार होने की। कोहूटा में हवालाती वैन से कैदियों के फरार होने की CCTV फुटेज सामने आ गई। CCTV फुटेज अकबा मार्केट के दुकान के कैमरे की है, जिसमें कैदियों को वैन से फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस एहलकारों ने भागने वाले कैदियों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन सिर्फ एक ही काबू में आ सका। 29 जून को 14 कैदी एहलकारों की आंखों में मिर्चें डालकर फरार हुए थे। 4 कैदियों को तो उसी दिन पकड़ लिया गया था, जबकि 3 कल गिरफ्तार किए गए। 7 कैदी ताहाल मफरूर हैं। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप पर नया फीचर सामने आ गया है, जिसके मुताबिक आप किसी को अपना नंबर दिए बगैर सिर्फ जो यूज़र नेम है उसके ज़रिए राब्ता या उसके ज़रिए जो अपना एक कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इस फीचर की अहम क्या डिटेल्स हैं, ये कैसे काम करेगा और इसके फ़वाइद क्या होंगे, ज़रा जान लेते हैं इस्लामाबाद में समा की नुमाइंदा अलीना शाहिद से। व्हाट्सएप अपने सारिफीन की प्राइवेसी को मज़ीद महफूज बनाने के लिए एक नया फ़ीचर मुतारिफ करवा रहा है और वो फ़ीचर होगा यूज़र नेम। अब इस फीचर को इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में समटाइम्स होते हैं कि आप किसी शख्स को कोई डॉक्यूमेंट, पिक्चर या वीडियो भेजना चाहते हैं, लेकिन आप उसे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते, तो उसके लिए आप इस यूज़र नेम फ़ीचर को इस्तेमाल करेंगे। यानी अब आप अपने मोबाइल फ़ोन नंबर के बगैर सिर्फ यूज़र नेम से किसी से भी चैट कर सकते हैं और उससे चैट करने के बाद आप चाहे तो वो यूज़र नेम तब्दील कर दें या फिर उसे ख़त्म कर दें। आपने व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाकर अपने अकाउंट में यूज़र नेम का इंतखाब करना है और जालसाजी से बचने के लिए व्हाट्सएप ने पहले ही किसी मशहूर शख्सियत के यूज़र नेम के इंतखाब पर पाबंदी लगा दी। यानी आप किसी मशहूर शख्सियत का नाम जो है वो अपने यूज़र नेम के लिए नहीं चूज़ कर सकते और उसका इंतखाब नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ये फ़ीचर आइंदा चंद माह में मरहलावार दुनिया के तमाम व्हाट्सएप सारिफीन के लिए दस्तयाब होगा और वो इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके
साथ साथ ये फीचर उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि अपने कारोबारी मकासद के लिए या अजनबियों से राब्ते में अपना ज़ाती नंबर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वो किसी से भी यूज़र नेम के तौर पे चैट करके और उसके बाद अपना नंबर शो किए बगैर अपनी बात मुकम्मल करके उस अकाउंट को बंद भी कर सकते हैं या फिर उसे तब्दील भी कर सकते हैं। कराची की वही पुरानी कहानी, बिल्कुल ऐसा ही है। खस्ता हाल सड़कें, कचरे के ढेर, लियाकताबाद का इलाका भी गंभीर मसले का शिकार है। इंतज़ामी की गफलत और इदारों की बेहिसी देखिए कि सैकड़ों गलियों को हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल तौर पर जो वहाँ पर कचरा कुंडी है तब्दील कर दिया गया। बिल्कुल हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कितने दिनों तक कोई पूछने वाला नहीं होता, तो फिर यही हाल होगा। और सीवरेज का मुसलसल रिश्ता पानी इमारतों की बुनियादें कमजोर करने लगा है। मोहनिस अहमद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। इंतजामिया की गफलत या इदारों की बेहिसी, लियाकताबाद कचरे तले दब गया। इलाके की सैकड़ों अकबी पतली गलियां मुस्तकिल कचरा कुंडियों में तब्दील। ताफुन से मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। मुसलसल रिश्ता गंदा पानी इमारतों को कमजोर करने लगा। मकीनों के मुताबिक सियासी जमातें और मुताल्लिका इदारों को शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। मसाइल तो बहुत ही हो रहे हैं, घरों में बदबू जा रही है, गंदगी हो रही है, बच्चे सब बीमार पड़ रहे हैं और दूसरे जरासीम वगैरह हैं। ये भी तो आप देखें ना किस तरह मसले मसाइल हो रहे हैं। घर में बुजुर्ग है, खवातीन है, सांस नहीं ले सकती, 4-5 फीट कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी पाइप लाइनें उखड़ी है, लोगों ने अपने हौदियाँ, सीवरेज की हौदियाँ तोड़ दी है। पानी भरा हुआ है यहाँ पे कचरे के अंदर। अब ये इमारतें किसी वक्त भी गिर जाए, कुछ हो जाए, हादसा हो जाए किसी का। हमें यूसी गया था, वो बोल रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, ये फलाने को बोलो, उनके पास जाओ, बोल रहे हैं ये उनका काम है। मुंतखब नुमाइंदों के मुताबिक जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है, लेकिन मरहलावार इस चैलेंज को हल कर रहे हैं। बेसिकली तो कचरा उठाने की जिम्मेदारी डोर टू डोर कलेक्शन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है। लियाकताबाद में 394 गलियाँ जो हैं वो बैग गली हैं, सिर्फ बैग गली की बात कर रहा हूँ मैं। इसी तरह इसमें से मेंटेन जो है वो 133 हैं और 261 जो है वो तकरीबन गंदी हैं। उस पर भी काम हो रहा है, लेकिन एक बड़ी तादाद जो है हमें इसके लिए चाहिए। गैर कानूनी पोर्शंस, इंतजामिया की गफलत या फिर लोगों की बेहिसी, वजह जो भी हो, शहरी मसाइल के फौरी हल का मुतालबा कर रहे हैं। कचरा, ताफुन और गंदा पानी यहाँ का मुकद्दर बन चुका है। इसीलिए शहरी सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्हें इस अजाब से निजात कब मिलेगी। कैमरामैन फैसल अगाई के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है, जहां तरक्याती मंसूबों में सुस्त रवि के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर को जाने वाली मसरूफ शाहराह पुलिस लाइन रोड कई साल से जेर तामीर है और ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं वहां पर मौजूद समा के नुमाइंदे जमील मुगर से। जी जमील, आप बताइएगा वहां की क्या सूरत हाल है? जी, सक्खर में जारी तरक्याती मंसूबे इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हैं। ख़ास तौर पर जो सड़कें हैं उन्हें सुस्त रवि से जो है बनाया जा रहा है। अगर मैं कुरैशी रोड की बात करूं, हुसैनी रोड की बात करूं, और इस वक्त मैं एक मसरूफ़ तरीन शाहराह पर मौजूद हूं जो मिलिट्री रोड से निकलती है और चौक घंटाघर पर, हाई कोर्ट पर और दीगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये सड़क जाती है। यहाँ पे ट्रैफिक का रुझान जो है बहुत ज़्यादा है, लोग इसी सड़क को जो यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो मार्केट है, वो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। धूल मिट्टी उनका मुकद्दर बन गई। बात करते हैं यहाँ के इलाका मकीन दुकानदारों से, क्या मुश्किलात हैं आपको? तकरीबन 2 से 3 साल का टाइम पीरियड हो गया। ये मेन शाहराह है, सक्खर सिटी के अंदर जाती है। ये थोड़ा सा काम करते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर थोड़ा सा काम करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। इतनी मिट्टी है, इतनी धूल है, तकरीबन काम कंप्लीट होने का नाम भी नहीं ले रहा है ये। बिल्कुल धूल मिट्टी इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा है। ये इलाका मकीन मुतालबा कर रहे हैं इस सड़क को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी, मुतालबा तो यही है। अब देखना ये है कि इंतज़ामिया कब जो है वो कहते हैं ना कि ख्वाब खरगोश के जो मज़े ले रही है उससे बेदार होकर वाकई मुतालबात पर अमल करेगी। बहुत शुक्रिया एनीवेज जमील। कुछ दीगर इशूज़ की भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम खबर वही अंदाज में। वेलकम बैक जी। तो ख़वातीन सुन लें जो कि रोज़मर्रा जब मार्केट में जाती हैं ज़ाहिर ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए, अगर आपने लाल टमाटर लेना है ना तो आपने लाल नोट लेकर जाना है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बगैर टमाटर नहीं मिलेगा क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। अब नया बजट कल से नाफिज हो चुका है और महंगाई का तूफान मुंह फाड़े खड़ा है। बात करें अगर लाल टमाटर की, जो 1-2 नहीं 3 लाल नोट अवाम की जेबों से निकलवा रहे हैं। यानी कि मैंने तो 1 नोट की बात की थी, 3 नोट है जी। अब कराची में कुछ दिनों पहले 100 रुपए में फरोख्त होने वाले टमाटर अब
300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है और महंगी कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं और मजीद बता रहे हैं खुर्शीद आलम अपनी इस रिपोर्ट में। चंद रोज़ पहले तक कराची में यही टमाटर 100 रुपए में 3 किलो दस्तयाब था, लेकिन अब शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में इसकी अलग अलग कीमतें वसूल की जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खारा दर में और यहाँ 260-280 रुपए फ़ी किलो में टमाटर फ़रोख्त हो रहा है, जबकि शहर के दीगर बाज़ारों में टमाटर ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, यानी 300 रुपए और उससे ज़ायद इसकी कीमत वसूल की जा रही है। ऐसे में ख़रीदार क्या सोचते हैं, सालन में क्या डाल रहे हैं और सलाद कैसे तैयार करते हैं, ये हम मालूम करेंगे उन्हीं की ज़बान। गरीब आदमी मजबूर हो के वो टमाटर नहीं लेंगे, वो कोई कट्टा ही वो लेगा, दही लेगा, 50 का वो डाल देगा, टाइम पास कर देगा। महंगाई इस वजह से हुआ कि पहले जो हालत से टमाटर का फसलात ज़्यादा था, अभी फसलात कम हो गए, बलूचिस्तान में पानी नहीं है, इस वजह से माल कम हो गया, माल महंगा हो गया। बाहर मुल्क का रास्ता खुल जाए, ईरान का टमाटर आए तो बाजार नीचे आ जाएगा, अभी माल कम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की तारीखी ली मार्केट में और हम यहाँ मालूम करेंगे कि टमाटर यहाँ किस भाव फरोख्त किया जा रहा है। असल सिंध का टमाटर वो सस्ता होगा, अभी ईरान का चांस है, ईरान जब आ जाएगा तो ये टमाटर सस्ता होगा, अगर ईरान नहीं आया तो ये 400 तक पहुँचेगा ये टमाटर। जो अपना उसमें डलिया साल में लिया, शुक्र है मालिक का, सलाद का टाइम बेकार हो गया, अब कहाँ तक आए। बाजार आने वाले ख़रीदार कहते हैं कि मामला टमाटर का हो या दीगर अशिया ज़रूरिया का, उनकी कीमतों को कम कराना या कीमतों पर नज़र रखना जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो अपने आरामदेह कमरों से बाहर निकलें। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट आपने देखी। तो नाजरीन, महंगाई से तो अवाम पहले ही लाल पीले हो रहे थे, अब टमाटर की कीमतें सुनकर उनका रंग मजीद सुर्ख हो गया है और फैसलाबाद में तो जो टमाटर है उसका रेट 350 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। जी रिदा। फैसलाबाद में टमाटर ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिर्फ एक हफ्ते में 70 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला टमाटर 350 रुपए किलो तक जा पहुंचा, जो शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर है। इस महंगाई पर अवाम की क्या राय है, आइए इन्हीं से जानते हैं। टमाटर इतने महंगे हैं कि हमने पूछे और छोड़ दिया था कि हम हांडी में डाले ही ना। चीज़ें इतनी महंगी हैं, सब्जियां देख लें, गरीब बंदा ले ही नहीं सकता। जितनी महंगी सब्जी है उतने मेरे बंदे के पास पैसे ही नहीं है कि बंदा करे तो करे क्या। टमाटर तो बहुत महंगे और कह रहे हैं आगे और बढ़ेंगे, महंगे हो जाएंगे, आप सस्ते नहीं हैं। एक हफ्ता पहले 70 रुपए के मेरे थे, अब 350 के हैं। थोड़ा थोड़ा लेकर गुजारा कर रहे हैं, मजबूरी है हर किसी की। दिहाड़ीदार लोग हैं, यकीन माने कि मैं काम पे गया था और 600 रुपये लेके आया हूँ, 100 रुपये के टमाटर लेके आया हूँ और ये 400 रुपया मुझे उन्होंने दिया, 200 रुपया उन्होंने मेरे साथ हदार कर लिया, बाकी थोड़ा थोड़ा सामान लेके आया हूँ। महंगाई के दौर में यकीन माने कि मुझे कितना दुख हो रहा है और ये मेरे पास 100 रुपीज़ है और मैं इसकी क्या लूँ आगे। टमाटर इतने महंगे हैं, क्या करें, हमारी तनख्वाहों में इतने पैसे नहीं होते हैं, इतनी आमदनी नहीं आती है जितने ये काट लेते हैं तनख्वाह टैक्स वगैरह, हम सब्जी क्या खरीदें। टमाटर की बढ़ती कीमतों ने शहरियों का होम बजट बिगाड़ दिया है। इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने के दावे तो करती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर आवाम को हकीकी रिलीफ कब मिलेगा। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा संधू, समा, फैसलाबाद। अच्छा जी, फैसलाबाद की सूरत हाल आपने जानी। कराची में टमाटर की क्या रेट्स हैं वो भी हमने आपको बताया। पेशावर की बात करें तो टमाटर के नर्ख वहाँ भी ज़ाहिर है बेकाबू हैं, बाज़ मकामात पर तो कीमत ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली है। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। पेशावर की फिरदौस फाटक सब्जी मंडी से हमें ज्वाइन किया है समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान ने। जी अब्दुल रहमान, ओवर टू यू। पेशावर में टमाटर का सीज़न होने के बावजूद इसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इस वक्त मार्केट में रेट्स क्या है, आइए जानते हैं। ये 2 महीने 3 महीने जो है ना, ये आड़ पशाकाल और बादरो ये गर्म होते हैं। इसमें जो किसान जो है ना, वो जो पहले 25-30 मन लेकर माल आ रहा था, अभी जो है ना 5-6 मन माल आता है। आज का रेट जो है 280-300 तक रेट है, वो भी अच्छी टमाटर नहीं है, कमज़ोर की टमाटर ये रेट है। असल में पंजाब और सिंध का जो सीज़न है ना वो तो ख़त्म हो गया है, अभी पेशावर का सीज़न आ रहा है। तो पेशावर में ये मसला है कि एक पेशावर की टमाटर है और सारी पाकिस्तान पे वो बेच रहे हैं हम। टमाटर जो है सर हफ्ते के पहले 120 पे किलो था, आजकल जो है 250-300 तो पहुँच गई। ठेकेदारों ने लिए ठेका 110 रुपये किलो, अभी बाज़ार में है 250 रुपये किलो। इस पर इनकम टैक्स भी देगा ठेकेदार, सेल टैक्स भी देगा, केपरा टैक्स भी देगा, कारोबारी लोग बस सब ये भी तबाह हो गए सर। हमारे ये मुतालिबा है, इंतज़ामिया से पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि इनको कंट्रोल करे। ताजरों का कहना है कि मकामी टमाटर जो है वो इस वक्त सिंध और पंजाब जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं
और अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है। तो नाजरीन, महंगाई की सूरत हाल तो आपने जानी, लेकिन अभी यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आपने हमारे साथ ही रहना है। वेलकम बैक नाजरीन, एक अहम इशू पर बात करते हैं। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा। अब तक 5 अफराद की हलाकत और 34 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि हमलों के बाइस कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। बिल्कुल, तो रूस का यूक्रेन पर ये बड़ा हमला है, दारुल हुकूमत कीव धमाकों से गूंज उठा है। अब तक 5 अफराद की हलाकत और 34 अफराद के जख्मी होने की भी तस्दीक की जा चुकी है। वो कहते हैं ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरखेज़ है साक़ी। मर्दान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तलबा और तलबात का एक बहुत बड़ा कारनामा जो कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम उन्होंने तैयार कर लिया है जो फ़िज़ा में ही दूसरे ड्रोन को नाकारा बना देता है। तलबा के बनाए एक से एक शाहकार की नुमाइश सजाई गई, जिसमें मसनूई ज़हानत, मेडिकल, ज़राअत और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से मुतालिक दर्जनों जदीद मंसूबे बताए गए हैं। कितनी वर्सटाइल, बहुत अच्छी बात है ये। और रिपोर्ट कर रहे हैं शहाब। ये मनाजिर मर्दान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के तलबा और तालबात के प्रोजेक्ट नुमाइश के हैं, जहां नौजवान इंजीनियर्स ने दिफा, मसनूई ज़हानत, मेडिकल, ज़राअत और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक मंसूबे पेश किए जो उनकी सलाहियतों का अमली मुजाहरा है। मैंने एक नेट शूट सिस्टम बनाया है ड्रोन के साथ, जो कि हवा में ऊपर जाके AI सिस्टम के थ्रू पहले कैमरे से देखेगा कि सामने आने वाली चीज़ ड्रोन है या नहीं है। अगर कैमरा डिटेक्ट करेगा कि यस इट इज़ ड्रोन, तो फिर उसके बाद वो अपने नेट शूट मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा। नुमाइश में गैस लीकेज जैसे जानलेवा खतरे से निपटने के लिए भी एक स्मार्ट अलर्ट सिस्टम मुतारिफ कराया गया। गैस का इखराज होते ही सायरन बज उठता है और सिस्टम में महफूज मोबाइल नंबर्स पर फौरी अलर्ट पैगाम भी अरसाल हो जाता है ताकि बरवक्त कार्रवाई मुमकिन बनाई जा सके। ये गैस लीक डेंजर लेवल है तो ये दोबारा वायरलेसली डेटा देता है GSM मॉड्यूल को और सेंट्रलाइज नोड को। नुमाइश में मसनूई ज़हानत पर मबनी AI डिजिटल स्टेथोस्कोप भी पेश किया गया, जो दिल और फेफड़ों की आवाज़ों को डिजिटल अंदाज में रिकॉर्ड और तज्जिया करने की सलाहियत रखती है। तलबा का कहना है कि मुनासिब सरपरस्ती और मौक़े मिले तो पाकिस्तानी नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में आलमी सतह पर नुमाया मुकाम हासिल कर सकते हैं। शहाब अकबर, समत, मर्दान। चले जी आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें शदीद गर्मी की लपेट में है। न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी और दीगर रियासतों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। न्यूयॉर्क में क्या सूरत हाल है, वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अली रजा से जानते हैं। जी अली। आज बिल्कुल, यूरोप के साथ साथ अमेरिका भी इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त हीट वेव के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुलाई के महीने के आगाज़ से ही दिन ब दिन जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर और दीगर स्टेटों में महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी किया गया है और न्यूयॉर्क के मेयर ज़हरान ममदानी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें 4 जुलाई जिसमें बताया जा रहा है कि दर्जा हरारत जो है वो अपनी पीक पर होगा, जो कि 110 से 112 के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा और इसी वजह से जो है वो हाई अलर्ट जारी किया गया है और शहरियों को इस बात की तलकीन की जा रही है कि घरों में रहें ताकि इस हीट वेव से बचा जा सके। थैंक यू वेरी मच अली फॉर ब्रिंगिंग द इनसाइट्स फ्रॉम देयर। ज़ाहिर सी बात है एहतियाती तदाबीर अपनाना तो बड़े ज़रूरी है, स्टे हाइड्रेटेड एज वेल। तो इसी के साथ ही जनाब आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। आपसे होती है मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।